पढ़ा होगा, कुछ नहीं, शायद 10% ने पढ़ा हो, चलिए कोई बात नहीं। So the signaling mechanisms, there are 5 types. 5 types. अब 5 types तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिलहाल, बट जो कैप्टन नकीब ने क्वेश्चन किया, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं आज जी प्रोटीन्स, ठीक है बेटा, जी प्रोटीन्स एंड सेकंड मैसेंजर्स। This is the basic structure of G protein. As you can appreciate, this is the lipid bilayer of cell membrane. This is the outside of the membrane, whereas this is the inside of the membrane. And this helical structure, this is the G protein. And as you can appreciate that this G protein, it is embedded inside the cell membrane. Some portion of G protein, this is the receptor, G protein receptor, not G protein. This is the G protein receptor. As you can appreciate that some portion of this receptor, it is outside the cell membrane. Some portion is embedded inside the cell membrane, whereas some portion it is located inside the cell membrane. So it is extremely important. Secondly, you can also appreciate that receptor, it has multiple helices. ये देखिए आप, please follow the pointer. ये ऐसे अंदर जा रही है one helix, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर अंदर बाहर अंदर बाहर. So this zigzag snake like structure, this has basically 7 loops. That's why this receptor is also labeled as 7 transmembrane receptor, and it is also labeled as serpentine receptors. But the most common name of this receptor is the G protein coupled receptor. couple का तो पता ही होगा आप सब लोगों को, एक यही चीज तुम लोगों को पता है, couple दो चीजों को बोलते हैं, पेयर को बोलते हैं. So these receptors, they make a pair, they make a couple with G proteins. This is G protein which is present inside the cell, and this G protein, it is constantly attached with the inner part of this receptor, forming a permanent couple. So that's why this receptor is labeled as G protein coupled receptor, and this is called the G protein. अब इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का काम क्या होता है? पहला क्वेश्चन, हाउ सिग्नलिंग बाय जी प्रोटीन इट प्रोड्यूसेस द फिनोमेना ऑफ स्पेयर रिसेप्टर्स, ये भी बताता हूं आपको. सेकंड क्वेश्चन, जीटीपी इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एट much higher concentration than GDP, but why GDP is attached to G protein in the absence of agonist? ये देखें बेटा, next diagram. Please keep following my pointer. This is G protein coupled receptor, 7 transmembrane receptor, and this is agonist. It comes from the outside and it binds with this receptor. And once the agonist binds with the receptor, agonist receptor complex is formed and the receptor is activated. On the inner side of receptor, there is a complex which is called the G protein GDP complex, which is attached with this receptor. मैंने क्या बात की थी कि रिसेप्टर के साथ अटैच होती है जी प्रोटीन, और फिर इस जी प्रोटीन के साथ बेटा अटैच होता है जीडीपी. तो ये आपने भूलना नहीं है. इन द इनर साइड ऑफ सेल देयर इज जीडीपी कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड विद द इनर सरफेस ऑफ द रिसेप्टर. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जी नॉर्मली सेल के अंदर जीटीपी ज्यादा होता है, लेकिन जी प्रोटीन के साथ जीटीपी अटैच नहीं होता, जी प्रोटीन के साथ जीडीपी अटैच होता है. उसका रीजन बेटा ये है कि जब एगोनिस्ट बाइंड नहीं करता, in the absence of agonist, this GDP complex is attached. But when the agonist comes and binds on the outer surface of this receptor, then there is activation of receptor, and due to activation there is some confrontational change in the receptor from the inner side of the receptor. रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसमें थोड़ी सी चेंज आती है. अब वो चेंज क्या होती है? डेट चेंज इज के जो इसके इनर साइड की रिसेप्टर के हेलिसेस हैं, ये लूप्स हैं, दे स्प्रेड अपार्ट बाय 1 नैनोमीटर, ऐसे ओपन हो जाती है लूप. ठीक है, तो लूप का डिस्टेंस 1 नैनोमीटर बढ़ जाता है. जब लूप ओपन हो जाती है, लूप थोड़ा सा
वाइडली स्प्रेड हो जाती है तो लूप के अंदर से ना एक स्पेशल कैविटी जो है वो विजिबल हो जाती है या वो अपेयर हो जाती है, जो कि नॉर्मली लूप के नैरो होने की वजह से अपेयर नहीं हो पाती। तो जब वो लूप थोड़ा सा वाइड होती है तो एक स्पेशल कैविटी ओपन होती है या अपेयर होती है, एंड विद एंड एंड दैट कैविटी it has the capacity to bind with some special point on the surface of G protein. So when that cavity it binds with the G protein, then due to that binding, GDP is released from the G protein. As you can appreciate, see the pointer please. This GDP is being released once the receptor is activated. Now G protein is free. Once the G protein is free, then this GTP it comes and binds with the G protein, and now we have a complex which is called as GGTP complex. And this complex is the main molecule or the main structure which has the ability to activate the effector system inside cell. For example, this GGTP complex, it can activate adenyl cyclase enzyme, which can then cause further processes or the downstream effects in the cell. So this was the answer of first question. Secondly, अब यहाँ से एक चीज समझने लगूँ आपको, why G proteins they show the phenomenon of spare receptors. बेटा spare receptors के बारे में हमने बात की थी. Spare receptors they are the receptors which remain, sorry, spare receptors they are the receptors which remain free of any agonist even after the production of maximal response. कि आपने एक agonist दिया बॉडी में और उस agonist ने जो इफेक्ट करना था वो इफेक्ट उसने प्रोड्यूस किया, आपने एगोनिस्ट बढ़ाया, इफेक्ट बढ़ता गया, एक पॉइंट आ गया एगोनिस्ट बढ़ाने से इफेक्ट नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि मैक्सिमल रिस्पांस आ गया। उस पॉइंट पे अगर कुछ रिसेप्टर्स हमारे पास फ्री पड़े तो उन रिसेप्टर्स को हम लेबल करते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स, एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स। अगर वो रिसेप्टर ना भी हों या हम उन रिसेप्टर्स को डिलीट कर दें तो भी इफेक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इफेक्ट पूरा ही आएगा। अब हमने फिर बात की थी कि स्पेयर रिसेप्टर्स कि आगे एक्सप्लेनेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट द स्पेयर रिसेप्टर्स दे कैन बी स्पेयर इन नंबर, सिंपली रिसेप्टर्स हैं बहुत ज्यादा कि जब इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है मैक्सिमली उसके बावजूद भी वो फ्री पड़े होते हैं। दूसरा हमने बात की थी डिग्री ऑफ स्पेयरनेस। डिग्री ऑफ स्पेयरनेस की बात के अंदर मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि ये जी प्रोटीन्स हैं, एक मैं पॉइंटर ऑन कर लूं मैं, दिस इज पॉइंटर, ओके। This is G protein coupled receptor, and on the inner surface, this alpha, beta, gamma. These are the three subunits of G protein. In alpha, beta, gamma को आप G protein समझें, और this is GDP, which is attached with the alpha subunit of G protein. So this is G protein GDP complex, and this complex is present in the absence of ligand. Ligand अभी attach नहीं हुआ, but once the ligand it attaches, then G protein it binds with the special cavity which is located inside the loops on the inner side of the receptor, and when G protein binds with that cavity, GDP is released. आप देख सकते हैं GDP release हो गया, and GTP it gets attached. Now alpha subunit it contains GTP, not GDP. So this is the active form. अब next step क्या होता है बेटा? Next step ये होता है, this G protein it is released from the G protein कपल्ड रिसेप्टर। अब ये कपल नहीं रहता, जब जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, जब जी प्रोटीन जीटीपी से कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो ये रिसेप्टर से हट जाती है। कैसे हटती है? ऐसे हटती है कि अल्फा और जीटीपी कॉम्प्लेक्स एक साइड पे हो जाता है और बीटा और गैमा कॉम्प्लेक्स एक साइड पे हो जाता है। बट इन दोनों का क्या काम होता है? इन दोनों का काम होता है मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट्स, बिकॉज बोथ आर एक्टिवेटेड नाउ। अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि जब हमने एगोनिस्ट दिया तो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और जब हमने एगोनिस्ट नहीं दिया तो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको भी हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर फिनोमेना। व्हाई? बिकॉज एगोनिस्ट इज नॉट बाउंड विद द रिसेप्टर बट इफेक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस। अब वो इफेक्ट क्यों आ रहे हैं? इफेक्ट बेटा इसलिए आ रहे हैं कि जो हमारे पास एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है इट स्टेज एक्टिव इवन इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट।
फर्स्ट इसको एक्टिवेशन के लिए एगोनिस्ट चाहिए होता है, लेकिन जब एगोनिस्ट का वहां से मेटाबॉलिज्म हो जाता है या एगोनिस्ट रिसेप्टर से हट जाता है, तो ये जी प्रोटीन सेल के अंदर काफी टाइम के लिए, इवन फॉर टेंस ऑफ सेकंड्स, इट रिमेन्स एक्टिव। अब टेक्निकली रिसेप्टर फ्री है, रिसेप्टर के ऊपर कोई एगोनिस्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट आ रहा है। तो इसको भी हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर फिनोमिना। तो स्पेयर रिसेप्टर दो वजह से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हैं बहुत ज्यादा इसलिए एक्स्ट्रा है, या डिग्री ऑफ स्पेयरनेस के रिसेप्टर से एगोनिस्ट तो हट गया है लेकिन रिस्पॉन्स फिर भी आ रहा है, फिर हम कहते हैं कि जी ये रिसेप्टर एक्स्ट्रा है। इनको हम हाइपोथेटिकली कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली ये हमने बात कर ली। सेकंड क्वेश्चन क्या था वो भी मैंने बता दिया है, जीटीपी जीडीपी वाली बात ना, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं जी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, रीसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ बीटा एड्रेनल रिसेप्टर। ओए कैप्टन, व्हाट इज रिसेप्टर अप रेगुलेशन, व्हाट इज रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन? ठीक है, अप मीन इंक्रीज इन द नंबर, डाउन मीन डिक्रीज इन द नंबर, नॉट रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स, उनका नंबर। इफ देयर इज, यस नकीब यू कैन स्पीक। सर हमने वो अभी पीछे डिस्कस किया, वो थोड़ा सा रह गया तो मैंने क्वेश्चन पूछना बेहतर समझा जी जी कि सर क्वेश्चन ये था। सर एक मिनट पीछे जाएंगे, मुझे वो क्वेश्चन ही भूल गया। इधर के आगे पिछली स्लाइड पे, यस दिस वन। इसमें सर क्वेश्चन, यस सर, एक तो क्वेश्चन मेरा ये था कि एक होती कॉन्फॉर्मेशनल चेंज रिसेप्टर्स के अंदर, और yes. एक हम discuss करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल चेंज। अच्छा, कन्फिग्रेशनल चेंज का वर्ड मैंने पहले कभी नहीं सुना, बट द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कन्फिग्रेशनल चेंज का मतलब है कि स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बट कन्फ्रंटेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि फंक्शनल चेंज, सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द फंक्शन। Is this your question, difference between confrontational change and configurational change? यस सर। ओके, कन्फिग्रेशनल चेंज को बेटा मैं जरा डिटेल में देखूंगा, मैंने पहले कभी वर्ड सुना नहीं है, एंड आई विल कम अप विद आंसर इंशाल्लाह। ओके श्योर सर। सर दूसरा क्वेश्चन मुझे भूल गया है, पता नहीं क्या क्या था वो। Take your time, you can ask at the end, don't worry. ओके सर। So receptor upregulation is defined as the increase in the total number of receptors is called receptor upregulation, and decrease in the total number of receptors is called as receptor downregulation. Tolerance is defined as the decrease in the response of drug, not receptor. Tolerance is defined as decrease in the response of drug when the drug is administered to a patient over a prolonged period of time. The prolonged आप जरूर कहना है. This is not the early response, it is the late response. Okay beta, this is the G protein coupled receptor, and this is the agonist, and this agonist it comes and binds with the receptor. So this agonist receptor complex, it causes activation of G protein, and G protein GTP complex is formed, and this G protein GTP complex it सर वो क्वेश्चन याद आ गया सर, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, आई एम सॉरी। पूछो बेटा, पूछो पूछो, यस यू कैन आस्क। सर वो ये था कि हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ अ रिसेप्टर। ओहो, ओके। तो अभी हमने ये स्पेयरनेस के कॉन्सेप्ट में आपने हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि ये स्पेयरनेस किस तरीके से होती है, तो क्या यही वजह होती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी की? ना 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 कैप्टन, ना बिल्कुल ना। Constitutive activity of the receptor is defined as little activity of receptor in the absence of any agonist. This is the definition. So number 1 point, and that constitutive activity is the activity of receptor, कि उसमें receptor जो है वो active होता है,
जो मैंने अभी बात की है स्पेयर रिसेप्टर की, इसमें मैंने बात किया कि रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जी प्रोटीन जीटीपी कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है, फिर वो रिसेप्टर से अलग हो जाता है, सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता रहता है। इन द मीन वाइल जो रिसेप्टर होता है बेटा वो फ्री हो जाता है और वो रिसेप्टर अपनी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी के क्या मैकेनिज्म क्या होता है फिर? मैकेनिज्म, चलो अब आपने पूछ ही लिया है तो द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर इज कि हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, एक ही मैकेनिज्म मैंने पढ़ा आज तक और मुझे मतलब अब कभी नजरों से गुजरा नहीं। एक मैकेनिज्म जो लिखा हुआ था बुक में वो ये था कि जो नर्व एंड मसल है, फॉर एग्जांपल, so nerve, somatic nerve, it releases acetylcholine from its endings, and that acetylcholine it binds on the NM type of receptors, nicotinic muscle type of receptors, on the motor end plate of the skeletal muscles. तो ये लिखा हुआ था कि जो नर्व्स होती हैं, सोमैटिक नर्व्स होती हैं, जो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ नर्व, in the absence of activation of nerve, they keep on releasing very minute, tiny or small amounts of acetylcholine. जब नर्व एक्टिवेट होती है, डीपोलराइज होती है, तो मैसिव अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जब नर्व डीपोलराइज नहीं होती तो भी लाइट अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन इट कीप्स ऑन secreting from the nerve terminals, and it keeps on exciting the receptors. So that's why receptors they go into state of activeness, not activeness. So this phenomena it causes the response generated from the receptor in the absence of activation of the nerve. एक ये मैंने बेटा पढ़ा था, बाकी कभी देखूंगा टाइम मिला तो कि why receptors they go into constitutive state and why they keep on producing the responses. But this phenomena is different. जी प्रोटीन एंड स्पेयरनेस ऑफ रिसेप्टर, इसमें रिसेप्टर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में। इसमें रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो अंदर इंट्रासेलुलर इफेक्टर सिस्टम को एक्टिवेट करता रहता है, फिर अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट जो है ये इनएक्टिव हो जाता है। ओके, यस श्योर। we were discussing desensitization, resensitization and down regulation. Okay, desensitization क्या होती है बेटा? इसमें आप देख सकते हैं कि जी रिसेप्टर के साथ एगोनिस्ट ने बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन जीटीपी कॉम्प्लेक्स बन गया और वो रिसेप्टर से सेपरेट हो गया, अलग हो गया और अपने इफेक्टर सिस्टम को उसने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज बेटा, इफ द एगोनिस्ट इज प्रेजेंट or if the agonist is attached with the G protein coupled receptors for prolonged period of time, आप जो है कंटिन्यूसली एगोनिस्ट को दे रहे हैं, कंटिन्यूस दे रहे हैं, फिर क्या होता है? फिर बेटा ये होता है, ये वाला फॉलो द पॉइंटर प्लीज, दैट एगोनिस्ट इट इज bound with the receptor for some prolonged time. What happen is that the G proteins, जब रिसेप्टर बेटा बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, एक्टिव फॉर्म होने की वजह से इसके साथ जी प्रोटीन की कपलिंग नहीं होगी, बिकॉज रिसेप्टर इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय द एगोनिस्ट एंड जी प्रोटीन जीटीपी कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, और वो जी प्रोटीन जीटीपी कॉम्प्लेक्स तो चला जाएगा सेल के अंदर अपना काम करने, रिसेप्टर वहां पे खाली पड़ा होगा। अब बेटा रिसेप्टर खाली पड़ा होगा तो फिर यहाँ वहाँ दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि क्यों ना इस रिसेप्टर के साथ हम कपल बना लेते हैं। इसका जो अपना एक काउंटर पार्ट था जी प्रोटीन, वो तो जीटीपी को लेकर चला गया है जी हनीमून पे, वो तो सेल के अंदर जाके अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये रिसेप्टर फ्री पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होता है? इन दिस स्टेट this is GRK, G protein receptor kinases. So GRKs, G protein receptor kinases, they cause the phosphorylation of the terminal part of the tail end inside the cell. So these P mean phosphorylated form of this terminal tail end of the G protein coupled receptor. Once this tail is phosphorylated, then another protein, beta arrestin, it comes and it binds with the G protein receptor and forms the complex. Now again,
there is complex formation, but now the complex is beta arrestin. So this whole assembly, this whole complex, it is attracted by the coated pits which are located in the cell membrane. So this complex, when it is attracted, it gets attached to with these coated pits, and the function of these coated pits is to क्या कहते हैं terminology, endocytose the whole assembly, whole receptor, whole complex. So as you can appreciate that this red line, this is the coated pit which has internalized the receptor. So once the receptor is internalized, then the total number of receptor in the cell membrane, it decreases, and this phenomena is called as receptor down regulation. And the main culprit which was causing this phenomena, it was the continuous exposure of agonist. So agonist is the culprit. So we will say whenever the receptor is exposed to the agonist for a prolonged period of time, then the phenomena of receptor down regulation will happen. Is that clear to everyone? I hope it is clear. अब बेटा क्या होता है, अब जब रिसेप्टर इंटरनलाइज हो जाता है, आफ्टर द इंटरनलाइजेशन, इससे पहले एक बात करता हूं बेटा, जब यहाँ पे था, प्लीज फॉलो द पॉइंटर, एट दिस पॉइंट जब फॉस्फोराइलेशन हुई रिसेप्टर की बाय जीआर कीज और उसके साथ बीटा आरएसएन आके अटैच हो गया, इस पॉइंट पे जब रिसेप्टर के ऊपर एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, दे विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स, क्योंकि अब इसके साथ जी प्रोटीन तो अटैच्ड है नहीं, अब इसके साथ अटैच है बीटा आरएसएन. So now this state of receptor, it is called as desensitized state. When the receptor is unable to produce any response, when the agonist comes and binds with it, then this state is labeled as what? Desensitized state of the receptor, and the phenomena is called as receptor desensitization. कोई response नहीं है. And this complex, it is attracted by these coated pits and internalized, and the number of receptors, it is decreased. This is labeled as receptor down regulation. Next क्या होता है बेटा? Next बेटा ये होता है कि जब ये इंटरनलाइज होता है तो हमारे पास सेल के अंदर और एंजाइम होते हैं which are labeled as phosphatases. But these phosphatases, they are present inside the inside the cell. They are present inside the cell, and these phosphatases, they cause the dephosphorylation of the G protein coupled receptor. As you can appreciate that by the action of phosphatases, the phosphate groups, they have been removed from the terminal tail end of this receptor, and now this receptor, it is as good as it was before the attachment of beta arrestin. So now this normal receptor is then reinserted back into the cell membrane. This is the fresh form of receptor because it has been reinserted into the cell membrane. Okay, and this phenomena, it is called as receptor resensitization, in which the receptor is reinserted back into the cell membrane in its true active form. This is the receptor resensitization. कि अब ये receptor okay है, now it can be activated, now it can act normally. We have discussed receptor desensitization होती है पहले, फिर उसके बाद receptor की down regulation होती है, और फिर ultimately क्या होती है बेटा, receptor की resensitization. एक और काम भी हो सकता है बेटा, एक और काम क्या हो सकता है कि जब receptor internalize हो गया था, तो ये जो receptor है ये सेल के अंदर रहता है, ठीक है. अगर एगोनिस्ट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो रिसेप्टर जो है वो डीफॉस्फोराइलेट होकर रीइंसर्ट नहीं होता. देन दिस रिसेप्टर, इट इज taken up by engulfed by lysosomes, and these lysosomes, they destruct the receptor permanently. रिसेप्टर को हम जड़ से उखाड़ देते हैं. So this is the phenomena. अब कैप्टन आपने बात की थी टेकीफाइलेक्सिस की, उसकी तरफ आता हूँ. मैंने डिफाइन किया टॉलरेंस को. टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट व्हेन द एगोनिस्ट और द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे अरसे तक, फॉर वीक्स एंड मंथ्स जब ड्रग ली जाती है, तब अगर इस ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो,
उसको बोलते हैं हम ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टेकीफाइलैक्सिस इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, जस्ट लाइक ड्रग टॉलरेंस यहाँ तक कॉमन है। The decrease in the response of the drug when the drug is administered rapidly over a short period of time, कि आप रैपिडली एकदम से ड्रग दे दें, बम्बार्डमेंट कर दें ड्रग की, कि रिसेप्टर एक बार थोड़ा सा हिल जाएं, और इसकी वजह से अगर रिस्पॉन्स कम हो जाए ड्रग का, देन दिस फिनोमेना इज लेबल्ड एज ड्रग टेकीफाइलैक्सिस। तो दो मैकेनिज्म टेकीफाइलैक्सिस के इस डायग्राम के अंदर है। पहला, due to continuous and massive exposure of agonist, the receptors they go into the state of desensitization। मैंने क्या बात की थी कि जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो एक्टिवेट होते हैं तो ये जी प्रोटीन दिस वन जी प्रोटीन जीटीपी कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि रिसेप्टर से डिटैच होकर सेल में चला जाता है टू प्रोड्यूस द इफेक्ट्स। अब अगर ये रिसेप्टर इसके ऊपर एगोनिस्ट अटैच रहे कुछ टाइम के लिए अटैच रहे, then this receptor is phosphorylated by the GRKs, and the phosphorylated form it causes the formation of bond with the beta arrestin, so and the receptor becomes desensitized। so टेकीफाइलैक्सिस का एक मैकेनिज्म ये हो गया कि रिसेप्टर desensitization due to continuous and massive exposure of agonist। secondly, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन हो सकती है, ठीक है। When this phosphorylated form it is attracted by the coated pits located in the cell membrane, then receptor internalization is going to happen। receptor is internalized, receptor अंदर चला जाता है। receptor जब अंदर चला जाता है तो receptor एक कम हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में। तो जब receptor कम हो जाएगा तो टोटल इफेक्ट भी तो बेटा कम हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट जब एगोनिस्ट आके लगेगा, पहले 10 रिसेप्टर थे अब 5 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। so this is another mechanism of tachyphylaxis। repeating again, drug tolerance is the decrease in the response of the drug when the drug is given for prolonged period of when the drug is given for the prolonged period of time, and this happens after weeks and months। drug tachyphylaxis is defined as decrease in the response of the drug when the drug is given repeatedly, अब बार बार दें, हर 5-10 मिनट के बाद दें, when the drug is given repeatedly and when it is given over a short period of time, कि आप 1 घंटे के अंदर 25 बार ड्रग लगा दें, तो फिर ये रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन हो सकती है और रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो सकती है। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कैन डिक्रीज। ये दो मैकेनिज्म हो गए बेटा टेकीफाइलैक्सिस की। अब तीसरा बताता हूं आपको। दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म। दिस इज द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है। ये एक्सॉन है, एंड दिस इज द साइनेप्स। This is presynaptic membrane which is causing the release of norepinephrine. This is postsynaptic membrane which contains the adrenoceptor with which the norepinephrine binds। अब बेटा अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम दे रहे हैं जी सूडोएफेड्रिन दे रहे हैं, हम रेजरपिन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये रेजरपिन ड्रग है। दिस रेजरपिन ड्रग व्हाट इट causes, the mechanism of action of this drug is that this drug Yes, this drug it causes block of entry of norepinephrine into the norepinephrine vesicles। एक ये काम करती है रेजरपिन। दूसरा काम रेजरपिन ये करती है कि it causes fusion of norepinephrine with the presynaptic membrane and there is massive release of norepinephrine। एक तो रेजरपिन नॉरेपिनेफ्रिन को वेजिकल में नहीं जाने दे रही, वेजिकल में डेफिशिएंसी हो जानी है। अब जितना भी नॉरेपिनेफ्रिन वेजिकल में पहले से होता है उसको रिलीज करा के सेल नर्व से बाहर फेंक देती है। अब इस एक्सॉन में या इस नर्व फाइबर के अंदर या नर्व सेल के अंदर नॉरेपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप दोबारा देंगे जब थोड़ी देर बाद रेजरपिन, तो नॉरेपिनेफ्रिन तो बेटा है ही नहीं, जो था वो आपने बाहर निकाल दिया, जो अंदर थोड़ा बहुत है उसको आप वेजिकल के अंदर पैक नहीं होने दे रहे, तो टेक्निकली नॉरेपिनेफ्रिन के लेवल कम हो जाएंगे। अब जो रेजरपिन का इफेक्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि नॉरेपिनेफ्रिन जब बाहर निकलती है और रिसेप्टर पे जाके अटैच होती है तो बॉडी में इफेक्ट आता है। लेकिन आप बार बार रेजरपिन देंगे, नई नॉरेपिनेफ्रिन तो हमारे पास आराम आराम से बन रही होती है, तो नॉरेपिनेफ्रिन कम रिलीज होगी। जब कम रिलीज होगी वेजिकल से तो इफेक्ट भी कम आएगा। इफेक्ट कम आएगा तो हम कहेंगे कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ टेकीफाइलैक्सिस, कि जिसमें हम बार बार
थोड़े थोड़े टाइम के बाद रेजरपिन दे रहे थे तो रेजरपिन का इफेक्ट खत्म हो गया या कम हो गया। तो दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ टेकीफाइलेक्सिस। अब हम आते हैं, मुझसे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल, 2-4 क्वेश्चन है, और जो मैंने एमसीक्यूज बना के आप लोगों को असेस किया था। जी मेरे क्वेश्चन है जी जी बोलें, जल्दी बोलें। सर, जो ये आपने बताया कि रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, तो जी इसके बाद जरूरी है कि डाउन रेगुलेशन हो फिर उसके बाद रिसेंसिटाइजेशन हो? ये हो सकता है कि डिसेंसिटाइजेशन के बाद डाउन रेगुलेशन ना हो और वो रिसेप्टर की रिसेंसिटाइजेशन हो जाए? बेटा बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले जी प्रोटीन की होती है एक्टिवेशन। अगर एगोनिस्ट काफी देर तक ठहर जाए, उसी रिसेप्टर की होगी पहले डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन तक सिस्टम रुक जाता है, लेकिन एगोनिस्ट फिर भी आप दे रहे हैं या एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी प्रेजेंट है, तो फिर थर्ड स्टेप होता है कि जीआरकेज उसको फास्फोराइलेट करते हैं, बीटा आरेस्टिन लग जाता है और फिर रिसेप्टर जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है। जब इंटरनलाइज हो जाता है तो फिर दो काम हो सकते हैं, या तो रिसेप्टर जो है वो रीसेंसिटाइज करके दोबारा मेम्ब्रेन में हम भेज देते हैं, या रिसेप्टर जो है उसको लाइसोसोम डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एगोनिस्ट। अगर एगोनिस्ट और ज्यादा देर के लगा रहे तो रीसेंसिटाइजेशन की जगह वो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो जाती है। स्टेप वाइज एक और रिसेप्टर क्वेश्चन डिसेंसिटाइज। जी जल्दी पूछें, जल्दी जल्दी, शाबाश पूछें। सर, सुपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी टर्म्स होते हैं रिसेप्टर, इसका क्या मतलब होता है ये बता दें? आवाज कट रही है, दोबारा पूछें प्लीज। रिसेप्टर सुपर सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी, इन टर्म्स का बता दें। सुपर सेंसिटिविटी बेटा ये होती है कि जब आपने रोजा रखा होता है, ठीक है, तो अफ्तारी के टाइम आपको हर वो चीज अच्छी लग रही होती है जो आप रूटीन में नहीं खाते, क्योंकि इतनी भूख लगी होती है, आपको खाने की इतनी एब्सेंस दी जाती है 14-16 घंटे की, कि आप कहते हो कि हुण बस कुछ आए सही, उसकी खैर नहीं है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड सुपर सेंसिटिविटी। व्हेनेवर द रिसेप्टर इज whenever receptor remains free of any agonist for prolonged period of time, then the receptor becomes super sensitive। सुपर सेंसिटिव कि अब एगोनिस्ट आए सही एक बार। जब एगोनिस्ट बहुत ज्यादा होता है तो रिसेप्टर ना लिफ्ट आता नहीं है, कहता है साइड पे हो जाओ, मुझे जरूरत ही कोई नहीं, मैं बड़ा रजा हुआ हूँ। तो बल्कि जब एगोनिस्ट ज्यादा हो जाता है तो रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एगोनिस्ट होता है। जब रिसेप्टर जो है वो उसकी उसकी जो है फिर फास्फोराइलेशन हो जाती है और रिसेप्टर फिर डिसेंसिटाइज हो जाता है। एगोनिस्ट आके लगता भी हो तो रिसेप्टर कहता है मैं नहीं होना एक्टिवेट, तो जो मर्जी कर ले, क्योंकि मेरे पास जी प्रोटीन है ही नहीं, वो तो अंदर चली गई होती है। तो जब एगोनिस्ट बहुत ज्यादा आ जाए रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाता है। एगोनिस्ट जब कम हो जाए या एगोनिस्ट बिल्कुल ना हो तो रिसेप्टर जो है वो सुपर सेंसिटिव हो जाता है। अब जो आप थर्ड टर्मिनोलॉजी बोल रही है रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी, बेटा मैंने ऐसी टर्म कहीं नहीं पढ़ी, आपने कहीं पढ़ी है या वैसे पूछ रही है? सर वैसे पूछ रही हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई टर्म नहीं होती, रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी होती है। दैट इफ द ड्रग इट इज प्रोड्यूसिंग एनी एलर्जिक रिस्पॉन्स by any mechanism, then that is called as drug hypersensitivity। जो हमारे पास रिएक्शन आता है ना, उसको हम कहते हैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। रिसेप्टर हाइपरसेंसिटिविटी टर्म नहीं होती। रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर सुपर सेंसिटाइजेशन एंड रिसेप्टर रीसेंसिटाइजेशन, ये तीन टर्म होती है। सर, और जो रिसेप्टर अप रेगुलेशन होती है और इसको हम सेम कह सकते हैं रिसेप्टर सुपर सेंसिटिविटी से, या ये डिफरेंट होते हैं? ना 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 बेटा ना, देखो बेटा रिसेप्टर अप रेगुलेशन का मतलब होता है कि रिसेप्टर का नंबर बढ़ जाए, रिसेप्टर की तादाद बढ़ जाए, अगर पहले 10 थे या 15 हो जाए। ओके सर। और जो और सर, और जो रिसेप्टर सुपर सेंसिटिविटी है उसमें रिसेप्टर रहते उतने हैं, 10 के 10 रहते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वो बस एगोनिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, एगोनिस्ट मिले सही। मतलब पहले अगर आप नॉर्मली अगर शाम को एक रोटी खाती हैं तो रोजे वाले दिन अफ्तारी में आप 15 रोटियां खा जाती हैं, बंदा आप वही हैं। लेकिन आप इतने सुपर सेंसिटिव होते हैं, इतनी भूख लगी होती है कि आप हर चीज डाल लेते हैं। वो तो बाद में पता चलता है ना कि 2 घंटे बाद कि आपने किया क्या, ओवर ईटिंग कर ली। बट सुपर सेंसिटिविटी यही होती है कि रिसेप्टर उतने ही रहते हैं, 10 के 10 रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव होते हैं कि हल्का सा एगोनिस्ट मिल जाए, हल्का सा एगोनिस्ट, बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में, बहुत लिटिल अमाउंट में, दे आर रेडी टू गिव वेरी गुड एंड मैक्सिमल रिस्पॉन्स।
बट रिसेप्टर अप रेगुलेशन का मतलब बेटा कि रिसेप्टर का नंबर कम हो जाए, सर नंबर बढ़ जाए, अप रेगुलेशन 10 से 15 हो जाए, और रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर का नंबर कम हो जाए, वो 10 से 5 हो जाए. So if there is increase in the number of receptors, then this phenomenon is called receptor upregulation. If there is decrease in the number of receptors, then this phenomenon is called receptor downregulation. सर जी बेटा. सर जो टॉलरेंस है वो कंप्लीट एंड रिस्पॉन्स है रिसेप्टर का या फिर रिस्पॉन्स है और वो नोटिसेबल नहीं है? दोबारा जरा. सर टॉलरेंस जो है वो इतनी देर से तो मुझे यही समझ आया है कि ये जो है वो कंप्लीट एंड रिस्पॉन्स है ड्रग का, नहीं सॉरी रिसेप्टर का ड्रग के लिए. तो मैं ये पूछ रही नहीं थी बेटा. कि बिल्कुल ही नहीं रिस्पॉन्स शो होगा रिसेप्टर नहीं का नहीं कि नहीं 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 होगा और वो बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होगा? नहीं बेटा, नोटिसेबल होता है. दोनों चीजें आपने मतलब सही नहीं बताई. आपने कहा कि रिस्पांस जो है वो नहीं होगा, ये भी आपने सही नहीं बताया, और आपने कहा कि रिस्पांस होगा लेकिन नोटिसेबल नहीं होगा, ये भी आपने सही नहीं बताया. बेटा जो टॉलरेंस है और टेकीफाइलेक्सिस है, दोनों के अंदर रिस्पांस होता है, नोटिसेबल भी होता है, बट रिस्पांस जितना होना चाहिए उससे कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्लीपिंग पिल स्टार्ट की, आपको प्रॉफ के अंदर स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, तो आप रात को पढ़ाई करने के बाद एक गोली खाते हैं नींद की, आपको नींद आ जाती है. मतलब आपने आपने टैबलेट खाई, और टैबलेट खाने के बाद आपको 15 घंटे के लिए नींद आ गई. लेट्स सपोज आप दूसरे दिन खाई, फिर सो गई 15 घंटे 15 घंटे 15 घंटे. एक महीने के बाद आपने वही सेम टैबलेट खाई, और पीछे से आप खाती आ रही है, पूरा एक महीना आपने टैबलेट खाई. एक महीने के बाद जब आपने टैबलेट खाई तो आपकी नींद 15 घंटे से कम हो गई, लेट्स सपोज 12 घंटे. फिर आपने एक महीना और खाई, फिर आपकी नींद 2 महीने बाद 12 घंटे से कम हो गई 8 घंटे. आप बैठ के सोचती हैं ये बड़ी गंदी ड्रग है. लगता है कि ड्रग ना अब सही नहीं आ रही, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले ना मिलावट कर रहे हैं. कि मैं पहले खाती थी 2 महीने तो बड़ी अच्छी थी, 15 घंटे नींद आती थी, अब मुझे सिर्फ 8 घंटे नींद आती है 2 महीने के बाद. So this phenomena is called as drug tolerance. Decrease in the response of the drug when the drug is given continuously for prolonged period of time. अब आप क्या करेंगे, अब आप एक की जगह 2 गोलियां खाएंगी, 2 गोली खाएंगी, फिर आपको नींद आएगी 15 घंटे. 6 महीने बाद 2 गोली से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 3 गोली खानी पड़ेगी, फिर आपको 4 गोली खानी पड़ेगी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ड्रग टॉलरेंस, के ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो, आहिस्ता आहिस्ता कम हो, और बड़े लंबे अरसे बाद कम हो, फौरन कम ना हो. अब ड्रग टेकीफाइलेक्सिस क्या होती है? बट ड्रग टेकीफाइलेक्सिस ये होती है कि आप जो है, let me define it first. Decrease in the response of drug, just like drug tolerance. उसमें भी यही था कि decrease in the response of drug. But in case of tachyphylaxis, the drug is given for short period of time and drug is given repeatedly. कि आप एक दिन के अंदर, मिसाल के तौर पे बेटा आपको है फ्लू, ठीक है, नाक से पानी आई जा रहा है आई जा रहा है आई जा रहा है, आपने एक मेडिसिन ले ली एंटी फ्लू, आपका फ्लू बेहतर हो गया, आपने कहा बड़ी अच्छी मेडिसिन है, घंटे बाद एक और खा ली, थोड़ा और बेहतर हो गया, घंटे बाद एक और मेडिसिन खा ली फ्लू की. तो आपने जब थर्ड टाइम खाई तो आपने देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उतना ही फ्लू ठीक हुआ जितना 2 ड्रग खाने के बाद ठीक हुआ था. आप बड़े परेशान हो जाती हैं, एक ही गल हुई, फिर आप चौथी बार खा लेती हैं. तो एक ही दिन के अंदर 4 घंटे में आपने 4 दफा गोली खा ली. So this is tachyphylaxis, that decrease in the response of drug when the drug is given repeatedly, कि बार बार ली जाए, and over a short period of time, बहुत कम duration में ली जाए. So this decrease in the response of drug is labeled as drug tachyphylaxis. I hope I have clarified, but if you have any जी सर. problem, you can ask me again. आगे सर क्वेश्चन है जी जी. सर, क्या डिसेंसिटाइजेशन की तरह टॉलरेंस भी रिवर्सिबल होता है? Yes, tolerance is also reversible. ठीक है, टॉलरेंस के बेटा अपने मैकेनिज्म होते हैं. टॉलरेंस का एक मैकेनिज्म होता है कि रिसेप्टर जो है ना वो फास्फोराइलेट हो जाता है. जैसे हमने बात की थी जी प्रोटीन के अंदर, जी प्रोटीन में जब मैंने बात की थी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन की, कि जब कंटिन्यूअसली एगोनिस्ट मिलता रहा,
बड़े लंबे टाइम के लिए, तो क्या हुआ, रिसेप्टर जो है वो फ्री था क्योंकि जी प्रोटीन तो जा चुकी थी वहां से एक्टिव फॉर्म में। तो रिसेप्टर को जी प्रोटीन रिसेप्टर काइनेजेस फास्फोराइलेट कर देते हैं। जब वो फास्फोराइलेट कर देते हैं तो रिसेप्टर गोज इनटू स्टेट ऑफ डिसेंसिटाइजेशन। एगोनिस्ट आके लगेगा तो भी वो एक्टिवेट नहीं होगा। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ड्रग टॉलरेंस। दिस इज आल्सो, अब आप क्या करेंगे, आप ड्रग देना बंद कर देंगे। ड्रग देना बंद कर देंगे 2-3 हफ्ते के लिए, तो फिर आपके सारे रिसेप्टर जो हैं वो डीफास्फोराइलेट हो जाएंगे, ड्रग टॉलरेंस आपकी बेहतर हो जानी है। फिर आप 4 गोली की जगह 1 गोली खाएंगी तो भी आपको फिर दोबारा 15 घंटे की नींद आ जाएगी। टॉलरेंस इज Yes. ऑलवेज रिवर्सिबल, टेकिफाइलैक्सिस इज आल्सो ऑलवेज रिवर्सिबल। जब आप ड्रग बंद करते हैं दोनों फिनोमेना रिवर्स हो जाते हैं। Yes, sir. सर Clear. सर जो रिसेप्टर अपरेगुलेशन होती है ना, तो वो जो होते हैं एंटागोनिस्ट की वजह से होती है, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो उसके अलावा बाकी एंटागोनिस्ट नहीं करवा सकते रिसेप्टर अपरेगुलेशन? हम हल्की